Welcome students. Today the topic that I have chosen for you is the factor which affect the climate of a place. It is the lesson number 8, that is weather and climate of class 7, and it is the part number 3 which are we going to cover. In this part you are going to study what are the different factors that affect a particular climate of a particular place. मतलब किसी जगह के क्लाइमेट को कैसे और कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं. आज का टॉपिक हम लोगों का यही है. सो द फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस आर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, क्लोजनेस टू द सी, रेनफॉल, wind. So there are main 5 factors. What are they? Latitude, altitude, closeness to the sea, rainfall and wind. We are going to study all these things in detail. So the first topic is latitude. I know you have already studied in geography, that is in SST or social science, about the latitude. Latitude are the vertical line that are drawn on the earth's surface. These are the imaginary line. I think you have studied. So the largest latitude is 0 degree. It is called equator. And as we move toward the north or toward the south, the degree of the latitude increases because it becomes 90 at the north pole, 90 north, and here it becomes 90 south. So these are the imaginary line. So how these line affect the particular climate of a particular place? Now this is the sun, and the sunlight directly falls on the equator. So the place near the equator is hot throughout the year. But when this light goes to the north pole or south pole, the light becomes slanting and it is not so intense, or the intensity of sunlight is very less. That's why this place, that is north pole and south pole, remain frigid, means fridge means always cold or below 0 degrees centigrade. Means these places are very cool because direct sunlight do not falls over here. So the area where sunlight fall directly is hotter, and the area where the sunlight falls slantly is cooler. Yes. So when we move from north pole to south pole, when we move from equator toward the north pole or toward the south pole, the temperature slowly and simultaneously decreases, and at top the temperature becomes very cool, or you can say it is the frigid temperature at which the water freezes to ice. Similarly, when we go toward downward from the equator, this is the equator, then the temperature again decreases very slowly and simultaneously, and at the south pole it becomes below than 0, that is in Antarctic region, and this is a very cold region. So let's study about latitude. The earth is divided exactly into the half by imaginary line that is called equator. Equator is the largest latitude. Latitude denotes the region of a earth in relation to the distance from the equator. As we move from equator toward the north and south, how far distance we move, it determines the climate of that particular region. मतलब इक्वेटर से हम कितना ऊपर जाते हैं, जितना ऊपर इक्वेटर के जाएंगे उतना ही धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं सनलाइट का जो लाइट है उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होने लगती है.
और इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर जाने लगते हैं सनलाइट की तीव्रता कम होने के कारण वो जगह ठंड होने लगता है। समझ में आया? तो द लैटिट्यूड डिनोट द रीजन ऑफ अर्थ रिलेशन टू द डिस्टेंस ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर से कितना दूर है इससे पता चलता है कि उस पर्टिकुलर लैटिट्यूड पर क्लाइमेट किस प्रकार का होगा। दिस डिस्टेंस इज यूजली मेजर इन डिग्री। तो इक्वेटर से कोई भी डिस्टेंस, कोई भी प्लेस कितने डिस्टेंस पे है किस में मापते हैं हम लोग? डिग्रीज में मापते हैं, क्योंकि इक्वेटर 0 डिग्री होता है और नॉर्थ पोल 90 डिग्री है, मैंने पहले ही बता दिया ना आप लोगों को, और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ है। सो डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर देयर आर 3 क्लाइमेटिक जोन्स। टोटल कितने क्लाइमेटिक जोन्स बनाए गए हैं? 3। चलो देखते हैं डिटेल में। टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन एंड टेम्परेट जोन। लेट्स स्टडी। ये ड्राइंग आपके बुक में दिया हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको प्रैक्टिस भी करना है और इसको ड्रॉ करके लिखना भी है। सो सी, दिस इज द इक्वेटर एंड दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज आर्टिक सर्कल एंड दिस इज अंटार्कटिक सर्कल। इट इज गिवन ओवर हियर। ये क्या है? इक्वेटर। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। ये कौन सी लाइन है? ये है आर्टिक सर्कल। और ये कौन सी लाइन है? ये है अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक ये बुक में दिया हुआ है। These all the things has been given in your book. Just you see this and remember to draw it. Okay, I'll see in your copy. Those who will not draw, their copy will not sign. Actually, just see it. अब इस बात पे जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इक्वेटर, ये तो इक्वेटर है। इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला रीजन, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ टॉरिड जोन। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। और ये रीजन सन में डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है और डायरेक्ट सनलाइट पड़ने के कारण ये रीजन सालों भर बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है, ह्यूमिड काइंड ऑफ क्लाइमेट होता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है इस जगह पे। यानी टॉरिड जोन कौन सा है? द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हो गया टॉपिक, ये हो गया आपके टॉरिड जोन। अब हम बात करेंगे टेम्परेट जोन। टॉरिड जोन के जस्ट ऊपर देखो आप, ये वाला रीजन, टॉरिड जोन के जस्ट ऊपर देखो, ये हो गया इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये वाला रीजन जो आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, इस जगह का जो ये जगह, ये देखो, ये वाला जो कलर, ये वाला जो एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच का जो एरिया है, ये देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और अंटार्कटिक सर्कल, ये देखो, ये जो सर्कल है इसका नाम है अंटार्कटिक सर्कल, के बीच का जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ टेम्परेट जोन होता है। इन जगहों पे ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ता है और ना ज़्यादा ठंडा पड़ता है। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अब देखो, ये वाला जो रीजन बचा अंटार्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक ये वाला रीजन जो ग्रीन में मैं बना रहा हूँ, और अंटार्कटिक सर्कल से ये सर्कल है, ये अंटार्कटिक सर्कल है, से साउथ पोल तक 90 डिग्री साउथ के बीच में जो एरिया है, ये बहुत ठंड पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली यहाँ नहीं पड़ता
और इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन, क्योंकि ये सालों भर फ्रिजिड रहता है, जमा रहता है, फ्रिज कंडीशन में पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा 3 जोन्स, कौन कौन सा? जस्ट सी वंस अगेन, क्लियर कर देता हूं। ये जो इक्वेटर से बीच का जो रीजन है, फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गया टॉरिड जोन। जो रेड वाला है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक, ये रीजन हो गया टेम्परेट जोन। और जो ऊपर वाला रीजन है, ये हो गया फ्रिजिड जोन, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो फ्रिजिड जोन के बारे में मैंने बताया, अब चलो डिटेल में स्टडी करते हैं। सो अबाउट टॉरिड जोन, द एरिया ऑफ द अर्थ नियर द इक्वेटर रिसीव द डायरेक्ट सनलाइट, thus this zone has hot and humid kind of climate। hot मतलब बहुत गर्म और humid मतलब पसीने वाला, बहुत हवा में बहुत पानी है और पसीना पैदा करता है, तो humid kind of climate। next comes frigid zone। frigid zone refer to the area of the earth near the north and south pole। ये कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। दिस एरिया गेट स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, सन की डायरेक्ट लाइट नहीं, स्लैंटिंग लाइट यहाँ पड़ती है, एंड दस कूलर, और बहुत ठंड होता है ये एरिया। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन रिफर्स टू द रीजन प्रेजेंट बिटवीन द टॉरिड एंड फ्रिजिड जोन। ये टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच का रीजन है। The temperate zone are further divided into warm temperate and cool temperate, tropical temperate and equatorial temperate। ये सारे टेम्परेट जोन को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू रीजन वाइज, है ना। तो इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो टेम्परेट जोन इज नॉट नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। टेम्परेट जोन ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। When we move from the earth's surface toward the above on the when we move above the earth's surface, जब हम जमीन से ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, at every 165 मीटर, हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीजेस। मतलब हर 165 मीटर ऊंचाई पर कितना डिग्री घट जाता है? 1 डिग्री घट जाता है। यही कारण है कि जैसे जैसे ऊपर जाने लगते हैं टेम्परेचर घटने लगता है, और बड़े बड़े पहाड़ों का जो पहाड़ जिस एरिया में है वहाँ गर्मी है, लेकिन पहाड़ों का जो ऊपर वाला रीजन है वो पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। क्यों? वो बर्फ़ क्यों है? क्योंकि हाइट ज़्यादा होने से टेम्परेचर घटता है, और टेम्परेचर घटने से वहाँ मौजूद जो पानी है वो फ्रीज हो जाता है, वो जम जाता है। समझ में आया? यानी हाइट बढ़ने से भी टेम्परेचर घटता है, और जैसे हाइट नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ यदि हम रहेंगे तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। जैसे जिन जगहों पर समुद्र का किनारा है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, इसके मुकाबले नेपाल जैसे रीजन में, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, हाँ उत्तराखंड जो कि पहाड़ों पे है, वो ठंड है। लोग गर्मी में उन जगहों पे घूमने जाते हैं। क्यों घूमने जाते हैं? क्योंकि ठंड होता है, और ऊंचा होने के कारण ठंड होता है। तो एल्टीट्यूड यानी कि हाइट जैसे जैसे बढ़ता है टेम्परेचर घटता जाता है। सो एल्टीट्यूड रिफर द हाइट ऑफ ए प्लेस। टेम्परेचर डिक्रीजेज एज द हाइट इंक्रीज। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं टेम्परेचर कम होने लगता है। द राइज ऑफ एल्टीट्यूड कॉज द फॉल ऑफ टेम्परेचर। एल्टीट्यूड जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर घट जाएगा। एंड द फॉल ऑफ टेम्परेचर इज रफली 1 डिग्री फ़ारेनहाइट एट 300 मीटर। हर 300 मीटर पर कितना घट जाता है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। और मैंने मीटर के बारे में बताया था ना, 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोजनेस टू द सी। जो एरिया समुद्र के बगल में होता है, समुद्र यानी वहां से क्या होता है, समुद्र से वाटर इवेपोरेट होता है और वो इवेपोरेटेड वाटर उस एरिया में फैल जाता है।
इसके कारण वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड होता है, बट वो वाटर वेपर उस एरिया को न तो ज़्यादा गर्म होने देता है और न ज़्यादा ठंडा होने देता है। इसलिए समुंदर के आसपास का जो एरिया है वो न तो ज़्यादा गर्म होता है और न ज़्यादा ठंड होता है। समझ में आया? चलो देखते हैं इसके बारे में। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इफ अ प्लेस नियर द सी द क्लाइमेट इज मॉडरेट, मीन्स देयर इज नो ड्रास्टिक चेंज इन द वेदर थ्रू आउट द ईयर। बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। कोई भी एरिया यदि समुद्र के बगल में है तो वो गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्म नहीं होगा, ठंड के मौसम में ज़्यादा ठंड नहीं होगा। बट वी मूव फर्दर फ्रॉम द सी, जैसे हम लोग सी से, समुद्र के किनारे से दूर की तरफ जाने लगते हैं, जैसे मुंबई से हम दिल्ली की तरफ आने लगे या पटना की तरफ आने लगे, या फिर बे ऑफ बंगाल से, बंगाल से हम पटना की तरफ आने लगे, तो जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाएंगे क्लाइमेट चेंज होने लगेगा और वो एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट हो जाएगा। यानी कि गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा और ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा। समझ में आ रहा है ना? नाउ द फोर्थ नंबर टॉपिक इज विंड। विंड, अब सपोज ये कंट्री है, अब इस कंट्री, ये कंट्री के चारों तरफ समुद्र है, या ये मान लो ये एक आइलैंड है, आइलैंड के चारों तरफ एक समुद्र है। इधर से जो समुद्री हवाएं आ रही हैं वो मान लो गर्म है, तो वो क्या करेगा, वो जैसे ही गर्म हवा इस जगह पे जाएगा इस पूरे एरिया को गर्म कर देगा। सपोज इधर से ठंडी हवाएं आती हैं, सपोज इधर से ठंडी हवाएं आती हैं, तो वो क्या करेगा, इस एरिया को ठंड कर देगा। तो हवा के नेचर के ऊपर में भी डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर प्लेस का जो क्लाइमेट है वो कैसा होगा, वो गर्म होगा कि ठंडा होगा। चलो पढ़ते हैं। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिपेंड ऑन वेदर द विंड ब्लोइंग इज कोल्ड और हॉट और ह्यूमिड और ड्राई। ह्यूमिड मीन्स उस हवा में पानी है कि नहीं है। जैसे मानसून का जो एयर होता है, मानसून का जो हवा होता है वो ह्यूमिड होता है, उसमें इतना पानी होता है कि वो बारिश कर देता है। सो विंड दैट ब्लो फ्रॉम द सी ऑफन ब्रिंग रेन टू द कोस्ट एंड ड्राई वेदर टू द इनलैंड एरिया। जो जैसी हवाएं बहती हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया को उस टाइप का क्लाइमेट देती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, सो it is the end of our class. Next day we will study about the part number 4 of lesson number 8. That's all for today. Remember to complete the homework on time, and if you have any kind of problem you can ask me. Okay, bye bye.